यह है दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज की लिस्ट और इसमें चाइना तीसरे नंबर पर आता है और ऐसा होना कोई सरप्राइजिंग बात भी नहीं है। आज चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। लगभग 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, 300 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं और हर साल करीब 245 बिलियन यूएस डॉलर्स का डिफेंस बजट है। एडवांस वेपन्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और मैसिव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि चाइना की जो स्ट्रॉन्ग आर्मी की इमेज दुनिया के सामने बनी हुई है वो आज अंदर से टूट रही है। What is happening in China's PLA? Has Xi Jinping gone totally overboard with his paranoia? You know, in the last few years, about 18 full generals, right? 30 lieutenant generals and 50 major generals have been sacked, purged, many of them executed, tortured, put in prison, killed. पिछले कुछ महीनों से चाइना के मिलिट्री सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो इस पूरी पावर इमेज को सीधा हिलाकर रख देता है। Let's turn to China, where the military is in a state of shock. There has been yet another purge, but it's not your routine cleanup, the kind that Xi Jinping keeps pulling off all the time. This one is much bigger, and this one is personal. It threatens to shake the command structure of the People's Liberation Army, the PLA, that's the Chinese military. शी जिनपिंग अपनी ही आर्मी के टॉप लीडर्स को एक के बाद एक करके एक सिस्टमैटिक तरीके से बाहर निकाल रहा है। Since Xi came into power, hundreds of senior officials across all sectors of the government have been taken down. माओ जेडोंग के बाद ये चाइना की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मिलिट्री पर्ज माना जा रहा है। During Xi's third term, 15 of the 79 generals promoted under him have either gone missing or been investigated. It's the biggest purge of China's military personnel since the chaotic Mao Zedong era ended in 1976. कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो पिछले कुछ सालों में चाइना में 700 से 800 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल को या तो हटा दिया गया है या फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है या फिर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रातों रात गायब कर दिया गया है। In the summer of 2023, there was an announcement that China was going to investigate corruption involving equipment purchases going right back to 2017. And then sort of within weeks of that announcement, we started to get reports that very senior people from China's rocket force were being hauled off, taken away, probed, and essentially ousted from their roles. During this period, 15 generals who had been promoted under Xi himself have either gone missing or been investigated. That's a major shift. None of Xi's predecessors ever purged generals they had personally appointed. इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में 50 से ज्यादा सीनियर मिलिट्री और डिफेंस ऑफिशियल्स को हटा दिया गया है और ये कोई मिड लेवल ऑफिसर्स नहीं है, ये बिल्कुल टॉप के लोग हैं। इवन चाइना के 2 डिफेंस मिनिस्टर्स, उन्हें भी एक के बाद एक करके नौकरी से निकाल दिया गया है। पहले वी फेंगही, Miao Hua is being suspended. फिर ली शांगफू, Li Shangfu, now the shortest reigning defense minister ever in China. ना कोई पब्लिक ट्रायल, ना कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन। और इससे भी बड़ा शौक तो तब लगता है जब चाइना के हाईएस्ट रैंकिंग जनरल ज़ैंग यूशिया, जो कि खुद शी जिनपिंग के चाइल्डहुड फ्रेंड थे और जिसे उनके सबसे ट्रस्टेड आदमियों में से एक गिना जाता था, उनको भी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट कर लिया जाता है। President Xi Jinping has removed his most powerful general, his closest confidant, in the most dramatic purge yet of the People's Liberation Army. 2 of China's top military generals are now under investigation for serious disciplinary violations. Zhang Youxia and Liu Zhenli both sit on the Central Military Commission. और ऐसे ही कई और ऑफिसर्स पर करप्शन के आरोप लगे, कईयों पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ डिसलॉयल्टी के आरोप लगे और कईयों को तो देश का गद्दार घोषित करके बाहर निकाल दिया गया। Vice Chairman of the Central Military Commission, Zhang Youxia, and member of the Central Military Commission, Chief of the Joint Staff Department of the Central Military, Liu Zhenli, are suspected of serious violations of discipline and law. और ये सब ना उस आर्मी के साथ हो रहा है जिसे खुद चाइनीज लीडरशिप ने 2027 तक वॉर रेडी होने का टारगेट दिया है। तो अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि चाइना पावरफुल है या नहीं है, नो डाउट वो बहुत पावरफुल है, लेकिन सवाल अब ये है कि इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा बजट
और इतना टाइट कंट्रोल होने के बावजूद शी जिनपिंग अपनी ही आर्मी के टॉप कमांडर्स को इतनी तेजी से हटा क्यों रहा है? ऐसा क्या चल रहा है चाइना की आर्मी के अंदर कि खुद सुप्रीम लीडर अपनी सबसे बड़ी ताकत पर भरोसा खोना शुरू कर चुका है? क्योंकि जब एक ग्लोबल पावर का लीडर अपनी ही आर्मी के टॉप लीडरशिप पर ट्रस्ट खोने लगता है तो उसका इंपैक्ट केवल चाइना तक लिमिटेड नहीं रह जाता। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर चाइना के पावर स्ट्रक्चर के अंदर चल क्या रहा है, और ये देखना कि ये क्राइसिस पूरी दुनिया और स्पेशली इंडिया के लिए क्या सिग्नल दे रहा है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि क्यों आज शी जिनपिंग अपनी ही आर्मी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, हमें चाइना के मिलिट्री स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बहुत आसान लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। चाइना की आर्मी का नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। नाम सुनकर लगता है कि एक नॉर्मल नेशनल आर्मी होगी। ऑन पेपर ये नेशनल आर्मी ही है और बॉर्डर पर चाइना को प्रोटेक्ट भी करती है। लेकिन भाई साहब, यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है, क्योंकि ये आर्मी सीधे चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। और इसका मतलब ये होता है कि इसका प्राइमरी रोल सिटीजन्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि पार्टी और उसकी टॉप लीडरशिप को पावर में बनाए रखना है। यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पॉइंट से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस पूरे सिस्टम के टॉप पर एक बॉडी होती है जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कहा जाता है। यही बॉडी डिसाइड करती है कि कौन जनरल बनेगा, कौन रिटायर होगा, कौन इन्वेस्टिगेशन के नीचे जाएगा, कौन वेपन्स खरीद सकेगा और कौन से मिलिट्री ऑपरेशन को अप्रूव किया जाएगा। और भाई साहब, अब जरा आप गैस करके देखिए कि इस कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? खुद शी जिनपिंग। यानी भाई साहब, चाइना की आर्मी का सुप्रीम कमांडर कोई एक प्रोफेशनल सोल्जर नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर है जिसके पास पावर है और जिसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूशनल चेक भी नहीं है। और ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चाइना की पूरी मिलिट्री की चाबी एक ही आदमी के हाथ में है। 2012 के बाद जब शी जिनपिंग पावर में आए तो उनका एक क्लियर गोल था चाइना की मिलिट्री को दुनिया के सामने एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह प्रोजेक्ट करना। और इस गोल के लिए डिफेंस बजट को लगातार बढ़ाया गया। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 2013 में चाइना का डिफेंस बजट लगभग 720 बिलियन युआन था। 2020 तक ये बढ़कर 1.27 ट्रिलियन युआन हो गया और 2025 तक ये लगभग 1.78 ट्रिलियन युआन पहुंच चुका है। डॉलर टर्म्स में लगभग 245 बिलियन डॉलर बनता है, जो दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री बजट्स में से एक है। और इस पैसे का यूज करते हुए शी जिनपिंग ने मिलिट्री एक्सपेंशन को फुल स्पीड में डाल दिया। 2012 तक चाइना के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, लियोनिंग। आज ऑफिशियली 3 एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में है चाइना के, और चौथा एडवांस्ड कैरियर अंडर कंस्ट्रक्शन है। चाइनीज नेवी का साइज 300 से ज्यादा वॉरशिप्स तक पहुंच चुका है, जो नंबर्स के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। एयरफोर्स के अंदर भी J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। मिसाइल प्रोग्राम्स को एग्रेसिवली एक्सपेंड किया गया, जिसमें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम्स भी शामिल है। भारत के साथ LAC के पास रोड्स, टनल्स, एयर स्ट्रिप्स और फॉरवर्ड बेसिस बहुत तेजी से बनाए हैं उन्होंने। अब देखिए, सरफेस पर यह सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी को बहुत ही स्ट्रांग कर डाला है, लेकिन इसी फेज के बीच में कुछ ऐसी चीजें भी हो रही थी जो पब्लिक इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट थी। धीरे धीरे सीनियर जनरल्स पब्लिक अपीयरेंसेस से गायब होने लगे थे, और ये कोई अफवाह नहीं थी बल्कि डॉक्यूमेंटेड पैटर्न था। फॉर एग्जाम्पल, ली शांगफू, जो 2023 में चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे, अचानक से पब्लिक व्यू से गायब हो गए। उनका नाम स्टेट मीडिया से हटा दिया गया, उनकी मीटिंग्स कैंसिल हो गई और फिर क्वाइटली चुपचाप उन्हें पोस्ट से रिमूव कर दिया गया। और इसी तरह से उनसे पहले के डिफेंस मिनिस्टर वेई फेंग ही भी करप्शन और डिसिप्लिन वायलेशंस के एलिगेशंस के बाद कंप्लीटली साइडलाइन हो गए थे। और सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर्स ही नहीं, रॉकेट फोर्स के टॉप कमांडर्स को भी टारगेट किया गया था। रॉकेट फोर्स जो चाइना के न्यूक्लियर और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आर्सनल्स को हैंडल करती है, उसके सीनियर ऑफिसर्स जैसे कि ली यू चाओ को अचानक से रिमूव कर दिया गया था। उनके बारे में पहले स्टेट मीडिया ने लिखना बंद किया, फिर उनका नाम ऑफिशियल लिस्टिंग से गायब हो गया। लॉजिस्टिक्स और इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के चीफ्स के साथ भी यही पैटर्न फॉलो किया गया। कभी किसी का यूनिफॉर्म डाउनग्रेड कर दिया गया, कभी किसी को पोस्ट से हटा दिया गया, कभी किसी ऑफिसर को हेल्थ रीजन का बहाना बनाकर चुपचाप रिटायर कर दिया गया, या फिर कभी किसी पर सीरियस डिसिप्लिन वायलेशंस के चार्जेस लगाते हुए हटा दिया गया। और भाई साहब, कुछ केसेस में तो सीधे सीधे ये बोल दिया गया कि हटाए गए लोग जो है ना, वो फॉरेन इंटेलिजेंस या सीधे सीधे कहूं तो CIA के पालतू हैं।
कई बार तो ये रीजन तक दे दिया गया कि सोल्जर्स ने न्यूक्लियर सीक्रेट्स ही यूएसए को दे डाले हैं। ये एलिगेशंस कभी भी पब्लिकली प्रूव नहीं किए गए, लेकिन उनका यूज ऑफिसर्स को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए जरूर कर दिया गया। और इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि ये लोग शी जिनपिंग के पॉलिटिकल राइवल्स नहीं थे, ये उसके द्वारा ही चुने गए लोग थे। ये वही जनरल्स थे जिन्हें शी जिनपिंग ने खुद प्रमोट किया था, जिन पर उन्होंने भरोसा किया था और जिन्हें उन्होंने अपनी मिलिट्री का रिफॉर्म का फेस बनाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिरी कुछ सालों में चाइना के ना जाने कितने जनरल्स और मिलिट्री ऑफिसर्स को अरेस्ट या फिर फायर किया जा रहा है बिना किसी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के। एक महीने में 9 जनरल्स को बाहर फेंका जा रहा है। और भाई साहब, ये बात किसी भी कंट्री के लिए एक नॉर्मल बात नहीं होती है, स्पेशली एक ऐसी कंट्री के लिए जो अपने मिलिट्री डिसिप्लिन पर इतना घमंड करती है। और इसीलिए ना इस पॉइंट पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, शी जिनपिंग अपनी ही आर्मी के अंदर किसी चीज से डरे हुए हैं और इसी डर के चलते हुए अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस और रिमूवल्स हो रहे हैं। अब देखिए, इसके ना मेनली 2 रीजंस हैं। पहले वो रीजन जानते हैं जो चाइना खुद दे रहा है। देखिए, चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना कि ये सब अरेस्ट और ये सब रिमूवल्स एक एंटी करप्शन ड्राइव का हिस्सा है, यानी उनकी आर्मी में कुछ करप्ट लोग हैं जिन्हें क्लीन किया जा रहा है, डिसिप्लिन को रिस्टोर किया जा रहा है और जो भी गलत है उसे निकाला जा रहा है। अब देखिए, ये बात ना काफी हद तक सही है कि चाइनीज मिलिट्री अंदर तक करप्शन से सन चुकी है, और मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इसके पीछे एक क्लियर रीजन है, डेटा है और डॉक्यूमेंटेड पैटर्न्स हैं। लेकिन इस सबसे पहले ना एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि चाइनीज आर्मी का जो करप्शन है वो नॉर्मल ब्राइबरी जैसा नहीं होता है, जहां किसी ऑफिसर ने छोटी मोटी रिश्वत ले ली और बात खत्म हो गई ना। ये एक सिस्टमैटिक करप्शन है, ऐसा करप्शन जो पूरे डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर घुसा हुआ है। जब शी जिनपिंग पावर में आए थे ना, तो उन्होंने तुरंत एक एंटी करप्शन कैंपेन को शुरू किया था। ऑफिशियल चाइनीज डेटा के मुताबिक 2012 से 2024 के बीच 50 लाख से ज्यादा ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेट किए गए थे। सिर्फ 2023 में ना सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन, इनके नंबर्स के हिसाब से 6,20,000 से ज्यादा ऑफिशियल्स पनिश हुए थे। 2024 में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ चुका था। अब ये बात ना क्लियरली दिखाती है कि ये ड्राइव स्लो नहीं हो रही थी, बल्कि और एग्रेसिव होती जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि ये क्रैकडाउन डिफेंस सेक्टर में इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्यों दिख रहा है? तो इसका जवाब ना चाइना के स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। डिफेंस सेक्टर दुनिया के सबसे लीस्ट ट्रांसपेरेंट सेक्टर में से एक होता है और चाइना इसका प्राइम एग्जाम्पल है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट और R&D एलोकेशंस, इनके ऊपर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती ही नहीं है और ना ही इनके कोई इंडिपेंडेंट पब्लिक ऑडिट होते हैं। मीडिया को एक्सेस मिलता नहीं है और ज़्यादातर डेटा क्लासिफाइड रखा जाता है। इससे भी ज़्यादा सीरियस बात यह है कि जो डिपार्टमेंट पैसा अप्रूव करते हैं वही डिपार्टमेंट क्वालिटी क्लियरेंस भी देते हैं। चाइना में इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट डिपार्टमेंट जैसी जो बॉडीज हैं वो फंडिंग अप्रूवल, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सब चीज़ें खुद ही हैंडल करती हैं। मतलब सिस्टम के अंदर कोई एक्सटर्नल चेक होता ही नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर में अकाउंटेबिलिटी का लेवल कितना ही होगा। और इसी वजह से ना डिफेंस कंस्ट्रक्शन और प्रोक्योरमेंट चाइना में करप्शन का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है। चाइनीज ऑडिट एजेंसीज और पार्टी डिसिप्लिनरी बॉडीज, इन्होंने खुद एडमिट किया है कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सीरियस वायलेशंस पाए गए हैं। सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज हुआ है और इन्फ्लेटेड बिलिंग की गई है। और क्वालिटी चेक्स वो तो सिर्फ फाइल्स के ऊपर क्लियर कर दिए जाते हैं। और ये सब ना कोई 1-2 प्रोजेक्ट्स में लिमिटेड नहीं था, बल्कि अलग अलग कमांड्स और रीजन्स में एक वाइड स्प्रेड पैटर्न के रूप में सामने आया था। और इस करप्शन का एक मेजरेबल इकोनॉमिक इंपैक्ट भी दिखाई दिया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एनालिसिस के हिसाब से प्रोक्योरमेंट रिलेटेड करप्शन प्रोब्स की वजह से वेपन कॉन्ट्रैक्ट स्लो हो चुके थे। इसका सीधा इफेक्ट ये हुआ कि 2024 में मेजर चाइनीज मिलिट्री मैन्युफैक्चरर्स, उनके रेवेन्यूज लगभग 10% तक गिर चुके थे। 10% तक। कुछ फॉर्मर PLA इनसाइडर्स के मुताबिक ना पिछले कुछ सालों में चाइनीज मिलिट्री के अंदर ब्राइबरी और किकबैक्स इतने ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुके थे कि प्रोक्योरमेंट और पोस्टिंग्स को एक तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शंस की तरह देखा जाने लगा था। अब एक तरफ तो ये सब करप्शन हो रहे थे, तो इस करप्शन के बाद ना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नैरेटिव को पुश करना शुरू किया। कई ऑफिसर्स पर यह आरोप लगा दिया गया कि वो CIA के एजेंट्स हैं और उनके साथ चाइना के सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं।
अब देखिए, ये बात सच है कि अमेरिका की एक हिस्ट्री रही है कि वो दूसरे देशों में मिलिट्री सिस्टम्स के अंदर इंटेलिजेंस और पेनिट्रेशन करता रहा है, लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि चाइना कोई ऐसे ही रैंडम या वीक देश नहीं है। चाइना दुनिया की सबसे टाइटली कंट्रोल्ड स्टेट में से एक है, और चाइना में ना सर्वेलेंस, इंटरनल मॉनिटरिंग और काउंटर इंटेलिजेंस मैकेनिज्म ये एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। इसीलिए ऐसे सिस्टम में जब लगातार जनरल्स अरेस्ट हो रहे हों तो ये फॉरेन हैंड के नाम पर जस्टिफाई कर देना एक कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन बन जाती है, और बहुत सारे लोग या बहुत सारी कंट्रीज इसे कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन के रूप में ही देख रहे हैं, ना कि कंक्लूसिवली प्रूवन रीजन के रूप में। तो अब ना एग्जैक्ट रीजन क्या है वो आगे बताते हैं। देखिए, असली रीजन है शी जिनपिंग का डर। डिटेल में समझाता हूं। करप्शन एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ करप्शन की वजह से इतने एग्रेसिव पर्जेस, इतनी हाई लेवल रिमूवल्स और इतना सेंट्रलाइज कंट्रोल जस्टिफाई नहीं होता है। और इसीलिए असली रीजन करप्शन नहीं है, असली रीजन है शी जिनपिंग का डर। और डर इस बात का कि उसकी कहीं अपनी ही आर्मी उसके अपने कंट्रोल से बाहर ना चली जाए। समझने वाली बात यह है कि चाइना में पावर सिर्फ पोजीशन से नहीं आती है, नेटवर्किंग से आती है। It's already lonely at the top when you run an authoritarian state. But for China's President Xi Jinping, loneliness seems to be a virtue. He's been purging past and present loyalists left and right, and he's just done it again. Only this time it's different. The latest man whose throat has been cut by Xi was a military power player who represented a threat. चाइनीज आर्मी के टॉप जनरल सिर्फ यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर्स नहीं होते हैं, उनके पीछे दशकों पुराने कनेक्शंस, लॉयल ऑफिसर्स और अपना इन्फ्लुएंस होता है। और शी जिनपिंग 2027 के बाद भी पावर में रहना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें सिर्फ पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि आर्मी का भी अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आर्मी के अंदर कुछ जनरल्स इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने वाले लोग नहीं रहे थे, वो खुद में एक पावर सेंटर बन चुके थे। इनफैक्ट ये जनरल्स ऐसे थे जो सिर्फ शी के फेवर से ऊपर नहीं आए थे, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी थी, अपना वॉर एक्सपीरियंस था और अपनी एक स्टैंडिंग थी। ऐसे लोग चाइना के सिस्टम में फ्यूचर पावर सेंटर्स बन सकते हैं, और शी जिनपिंग को एग्जैक्टली इसी चीज का डर है। सबसे क्लियर एग्जांपल है झांग यू शिया का। झांग यू शिया सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, यानी शी जिनपिंग के बाद सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑफिसर। वो वियतनाम वॉर के वेटरन थे, और पीएलए के अंदर उनकी रेपुटेशन एक रियल बैटलफील्ड कमांडर की थी। उनका रेपुटेशन सिर्फ पॉलिटिकल लॉयल्टी पर बेस्ड नहीं था, उनके पास रिस्पेक्ट थी, एक्सपीरियंस था और अपना एक लॉयल सर्कल था। और शी जिनपिंग जैसे लीडर्स के लिए एक सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रांग पोजीशन के साथ इंडिपेंडेंट क्रेडिबिलिटी। इसी तरीके से ली शांगफू का केस देखिए। ली शांगफू शी जिनपिंग के ट्रस्टेड मैन माने जाते थे, उन्हें डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया था। लेकिन जैसे ही उनका इन्फ्लुएंस डिफेंस प्रोक्योरमेंट और मिलिट्री इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा कंसोलिडेट होने लगा, उनका नाम अचानक से स्टेट मीडिया से गायब हो गया। चाइना की पब्लिक को आज तक क्लियरली ये नहीं बताया गया है कि उनका एग्जैक्ट क्राइम क्या था, और ये पूरा पैटर्न चाइना में सिर्फ एक चीज की तरफ सिग्नल करता है, पावर कॉन्सेंट्रेशन हद से ज्यादा हो रही थी। इसके बाद वेई फेंग ही का केस आता है। वेई फेंग ही भी शी इरा के लॉयल ऑफिसर थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके अगेंस्ट भी डिसिप्लिन वायलेशंस और करप्शन के एलिगेशंस आ गए। और चाइना में ऐसे एलिगेशंस का मतलब होता है पॉलिटिकल एलिमिनेशन। इन एलिगेशंस का प्रूफ पब्लिक नहीं होता, लेकिन मैसेज क्लियर होता है, कोई भी ऑफिसर परमानेंटली सेफ नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट नाम है ली यू चाओ। यह ऑफिसर एक हाईली सेंसिटिव कमांड से जुड़ा हुआ था। उसका सडन रिमूवल और उसके पूरे कमांड स्ट्रक्चर का रीशफल सिर्फ करप्शन का केस नहीं लगता है, ये एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक लगता है, मतलब रिस्क को ग्रो होने से पहले ही खत्म कर देना, जड़ से मिटा देना। यहाँ पर एक बात समझना और जरूरी है, चाइना में रिबिलियन का मतलब टैंक्स को लेकर बीजिंग में मार्च करना नहीं होता है। चाइना में रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑर्डर्स को डिले करना, इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करना, क्वाइटली पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना। और शी जिनपिंग को इसी साइलेंट रेजिस्टेंस का डर है। इसीलिए चाइना के सिस्टम में सिर्फ डिसलॉयल होने का प्रूफ काफी नहीं होता है, सिर्फ सस्पिशन, सिर्फ शक के आधार पर भी आपको निकाला जा सकता है। अगर लीडरशिप को लग रहा है कि कोई ऑफिसर ज्यादा इंडिपेंडेंट सोच रहा है, ज्यादा पॉपुलर हो रहा है या अपना पावरफुल नेटवर्क बना रहा है, तो उसका अंत ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन लगती है, पोजीशन जाती है और कई केसेस में पब्लिक लाइफ खत्म कर दी जाती है। कुछ केसेस में फैमिली मेंबर्स भी टारगेट हो जाते हैं, और ये माओ के टाइम से ही चलता आ रहा मॉडल है, बस तरीके मॉडर्न हो गए हैं। कभी शी जिनपिंग के पिता को ऐसे ही पकड़ा गया था, और आज शी जिनपिंग इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। उनके लिए एक एवरेज बट फुली लॉयल जनरल ज्यादा सेफ है कंपेयर टू एक कॉम्पिटेंट एंड रिस्पेक्टेड जनरल जो कल को सवाल पूछ सके।
और इसीलिए आर्मी को प्रोफेशनल बनाने की बजाय आर्मी को पर्सनली लॉयल बनाया जा रहा है। और जब लॉयलिटी कॉम्पिटेंस से ऊपर आ जाती है तो सिस्टम अंदर से और ज्यादा फ्रजाइल हो जाता है। शी जिनपिंग इसी लॉजिक पर काम कर रहे हैं। वो रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उनके लिए लॉयल बट वीक जनरल ज्यादा सेफ हैं कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बट इंडिपेंडेंट जनरल्स। और जब एक लीडर अपनी ही आर्मी से इतना इनसिक्योर हो जाता है तो उसके डिसीजंस सिर्फ इंटरनल नहीं रहते हैं, उस इनसिक्योरिटी का इफेक्ट बाहर की दुनिया पर भी पड़ता है। देखिए, ये जो आज चाइना में हो रहा है ये कोई नई चीज़ नहीं है। चाइनीज हिस्ट्री में एक क्लियर पैटर्न रहा है। जब भी किसी लीडर को लगता है कि आर्मी ज़्यादा पावरफुल हो रही है या कंट्रोल से बाहर जा सकती है तो सबसे पहले आर्मी को ही क्लीन किया जाता है। माओ जेडोंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम पर बिल्कुल यही किया था। उस दौरान भी सीनियर जनरल्स को पर्ज किया जा रहा था, उन पर लॉयल्टी के डाउट उठाए जा रहे थे और आर्मी को पार्टी के नीचे पूरी तरीके से झुकाया जा रहा था। और आज शी जिनपिंग वो भी बिल्कुल सेम ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस तरीका थोड़ा सा बदल गया है। आइडियोलॉजी और रेवोल्यूशन के नाम पर नहीं बल्कि एंटी करप्शन और डिसिप्लिन के नाम पर सेम चीज़ें हो रही हैं। बाहर की दुनिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइना कोई छोटा या वीक देश तो है नहीं। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है और चाइना हर साल लगभग 245 बिलियन यूएस डॉलर्स डिफेंस पर खर्च कर देता है। जब इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स के अंदर फियर, डिस्ट्रस्ट और कॉन्टिन्यूअस पर्स चल रहे हों तो अनसर्टेनिटी ना बढ़ जाती है। ऑफिसर्स परफॉर्मेंस के बजाय सर्वाइवल के बारे में सोचने लगते हैं। रियल प्रॉब्लम्स ऊपर तक नहीं पहुंचती और सिस्टम सिर्फ पेपर पर स्ट्रांग दिखाई देने लगता है। और यहाँ पर ना सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि जब एक लीडर बहुत नर्वस होता है और उसके पास टोटल कंट्रोल भी होता है और आर्मी अंदर से शेकन होती है तो उसके डिसीजंस अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। वो कब क्या मूव ले लेगा, किस डायरेक्शन में प्रेशर बना देगा, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए दुनिया के सारे बड़े देश चाइना के इन मिलिट्री पर्जेस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सिर्फ जनरल्स के नाम की बात नहीं हो रही है, ये बात है चाइना के फ्यूचर बिहेवियर के बारे में और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में और उसके पावर को यूज करने के तरीके के बारे में। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में, आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन तीनों के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।